آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے ان اداکاروں کے بارے میں جن کی شادی زیادہ عرصہ نہ چل سکی اور شادی کے کچھ عرصے بعد ہی طلاق ہو گئی۔ اگر آپ ان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، حنا الطاف اور آغا علی۔ حنا الطاف اور آغا علی جن کی شادی 2020 میں ہوئی۔ ان دونوں کی شادی اچانک سے ہوئی۔ اس سے پہلے آغا علی کی سارا خان کے ساتھ بھی منگنی ہو چکی تھی، لیکن ان دونوں کی کچھ وجوہات کی بنا پر منگنی ختم ہوئی، جس کے بعد آغا علی نے حنا الطاف کے ساتھ شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ دونوں ہی اداکار ہیں اور اداکاری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ شادی کے بعد یہ دونوں اکثر ایک دوسرے کے ساتھ نظر آتے تھے اور ان دونوں نے ایک ساتھ مل کر کافی زیادہ کام بھی کیا۔ شادی کے بعد ان دونوں نے ایک ساتھ ہوسٹنگ بھی کی، لیکن اچانک سے ان دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ نظر آنا بالکل چھوڑ دیا اور اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے بھی ایک دوسرے کو انفالو کر دیا۔ اس کے بعد تمام ان کے فینس کو کافی زیادہ حیرانگی ہوئی کہ یہ دونوں ایک ساتھ تو کافی زیادہ نظر آتے تھے، لیکن اب یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کیوں نہیں نظر آتے، جس کے تھوڑے عرصے بعد یہ بات سامنے آئی کہ ان دونوں کی طلاق ہو چکی ہے۔ ان دونوں کی شادی 2020 میں ہوئی، جبکہ شادی کے کچھ عرصہ بعد ہی 2022 میں ان دونوں کی علیحدگی ہوگی، لیکن آج تک انہوں نے سوشل میڈیا پر آ کر اس بات کا اقرار نہیں کیا کہ ان دونوں کی طلاق ہو چکی ہے، جبکہ دوسری جانب یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نظر بھی نہیں آتے۔ نمبر 2، نمرا خان۔ پاکستانی اداکارہ نمرا خان جن کی شادی اپریل 2020 میں ہوئی۔ نمرا خان جو کہ ایک اداکارہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ماڈل بھی ہیں۔ نمرا خان نے پاکستان کے بے شمار ڈرامہ سیریلز کے اندر لیڈ رول بھی کیا ہے، جہاں پر ان کی اداکاری کو کافی زیادہ پسند بھی کیا گیا۔ نمرا خان کی جب شادی ہوئی تو ان کی شادی کے کچھ عرصے بعد ہی ان کی طلاق ہو گئی۔ ان کے شوہر کا تعلق شوبز انڈسٹری سے نہیں تھا، بلکہ وہ برطانیہ میں ایک پولیس آفیسر تھے۔ شادی کے بعد نمرا خان بھی برطانیہ چلی گئیں، لیکن برطانیہ جانے کے کچھ مہینوں بعد ہی انہوں نے اپنے سوشل میڈیا پر کچھ ایسی تصاویر پوسٹ کی جہاں پر یہ کافی زیادہ زخمی حالت میں تھیں، اور اس کے بعد یہ پاکستان بھی واپس آ چکی تھیں۔ انہوں نے اپنے شوہر کے بارے میں بتایا کہ ان کے شوہر جو کہ ان پر کافی زیادہ تشدد بھی کرتے تھے۔ نمرا خان جو اپنی شادی سے بالکل بھی خوش نہیں تھی، انہوں نے بتایا کہ ان کے کچھ مہینے بعد ہی طلاق ہو گئی۔ ان کے ہسبینڈ نے ہی سوشل میڈیا پر آ کر اس بات کا اقرار کیا کہ ان دونوں کی طلاق ہو چکی ہے۔ نمرا خان نے انٹرویو کے دوران یہ بھی بتایا کہ طلاق کے بعد یہ کافی زیادہ ڈپریشن میں بھی چلی گئی تھیں، لیکن دوبارہ سے انہوں نے کام سٹارٹ کیا اور دوبارہ سے زندگی کی طرف واپس آئیں۔ نمبر 3، سرمد کھوسر۔ پاکستانی اداکار سرمد کھوسر جن کی عمر اس وقت کافی زیادہ ہو چکی ہے، یہ اکثر ڈرامہ سیریلز کے اندر سپورٹنگ رولز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کچھ چھوٹے موٹے ڈرامہ سیریلز کے اندر لیڈ رول بھی کیا ہے۔ سرمد کھوسر جو کہ ہر طرح کی اداکاری کرنا جانتے ہیں، یہ بھی کافی لمبے عرصے سے پاکستانی ڈرامہ سیریلز میں کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سرمد کھوسر نے اپنے ایک انٹرویو کے دوران اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں کھل کر بات کی اور انہوں نے بتایا کہ ان کا 27 سال کی عمر میں نکاح ہوا، اور جب ان کا نکاح ہوا تو یہ اسی بات کو سمجھتے تھے کہ اب ان کا نکاح کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، بلکہ یہ اپنے نکاح کو کافی زیادہ نبھائیں گے۔ لیکن نکاح کے کچھ عرصے بعد ہی انہیں اس بات کا اندازہ ہوا کہ یہ اس نکاح کو اور زیادہ عرصے تک جاری نہیں رکھ سکتے۔ انہوں نے اپنی وائف کو بھی اس بارے میں بتایا کہ یہ اس نکاح کو جاری نہیں رکھنا چاہتے، جس کے بعد ان دونوں کی طلاق ہو گئی۔ انہوں نے مزید یہ بھی بتایا کہ مجھے اس طلاق کا بالکل بھی افسوس نہیں ہے، بلکہ انہوں نے نکاح کے بعد کافی زیادہ کچھ سیکھا اور کافی زیادہ باتیں سمجھی بھی ہیں۔ اور آج سرمد کھوسر کا کہنا ہے کہ میں اپنی زندگی میں بہت ہی زیادہ خوش اور اپنے کام کو لے کر بھی کافی زیادہ مطمئن ہوں۔ نمبر 4، عریج فاطمہ۔ پاکستانی اداکارہ اور ماڈل عریج فاطمہ۔ عریج فاطمہ نے اس وقت شادی کی جب ان کا کیریئر سٹارٹ ہوا تھا۔ یہ ایسی اداکارہ ہیں جن کی شادی کچھ دن ہی چل سکی اور ان کی شادی کے کچھ دن بعد ہی ان کی طلاق بھی ہو گئی۔ عریج فاطمہ کی شادی فراز احمد کے ساتھ ہوئی تھی، جو کہ ان کی ارینج میرج تھی، لیکن ان کی شادی کے 10 دن بعد ہی ان کی طلاق بھی ہو گئی۔ عریج فاطمہ نے بتایا کہ ان کے کچھ خاندانی اختلافات کی وجہ سے ان کی آپس میں طلاق ہوئی، لیکن ان کی طلاق ہونے کے بعد کافی زیادہ باتیں بننا بھی شروع ہوئی اور سبھی لوگ یہ سمجھنا شروع ہوئے کہ خاندانی اختلافات کے علاوہ کوئی اور بھی بات تھی، اسی وجہ سے ان دونوں کی اچانک سے اتنی جلدی طلاق بھی ہو گئی۔ لیکن عریج فاطمہ نے اس بارے میں زیادہ کچھ شیئر نہیں کیا اور سوشل میڈیا پر ان کے ہسبینڈ کے بارے میں بھی کافی زیادہ اور باتیں بھی شیئر ہونا شروع ہوئی، جن کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ تمام باتیں جھوٹ ہیں، بلکہ لوگ خود سے یہ باتیں بنا رہے ہیں۔ اداکارہ عریج فاطمہ جو کہ اب دوسری شادی کر چکی ہیں،
दूसरी शादी करने के बाद अब ये एक हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रही हैं और इनका कहना है कि ये अपनी ज़िंदगी से अब काफ़ी ज़्यादा खुश है। इन्होंने शोबिस इंडस्ट्री को भी छोड़ दिया और अब सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली के साथ ही टाइम स्पेंड करती हैं। नंबर 5, फरियाल महमूद और दानियाल रहील। ये दोनों अदाकार जिन्होंने 2020 में ही शादी की। इन दोनों की शादी जो कि लव मैरिज थी, इन्होंने पसंद की शादी की, लेकिन इनके शादी के कुछ अरसे बाद ही इन दोनों ने एक साथ ली की तमाम तस्वीर अपने सोशल मीडिया अकाउंट से डिलीट कर दी और अचानक से ही इन दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो भी कर दिया। इनकी शादी के सिर्फ और सिर्फ 7 माह बाद ही इन दोनों की आपस में तलाक हो गई। शुरू में तो फरियाल महमूद अपनी तलाक की खबरों को सिर्फ और सिर्फ अफवाह कहती थी और इनका कहना था कि इनकी तलाक नहीं हुई, लेकिन एक इंटरव्यू के दौरान इन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी कि अब इनकी तलाक हो चुकी है और अब ये अकेले ही जिंदगी गुजार रही हैं। अब ये बहुत सारे ड्रामा सीरियल्स के अंदर एक्टिंग करती हुई नजर आती हैं, जबकि अभी इनका दोबारा से शादी करने का कोई भी इरादा नहीं और इनका कहना है कि ये अपनी ज़िंदगी को अब अकेले ही गुजारेंगी। जब इन्हें लगेगा कि कोई अच्छा इंसान इनकी ज़िंदगी में आना चाहता है तो ये तभी शादी करेंगी। नंबर 6, अफान वहीद। पाकिस्तान के डिसेंट नज़र आने वाले अदाकार अफान वहीद, इनको देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता कि इनकी तलाक भी हो सकती है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे इंसान समझे जाते हैं। ये ड्रामा सीरियल्स में भी ऐसी अदाकारी करते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा पसंद की जाती है। आजकल ये ड्रामा सीरियल बेहद के अंदर भी अदाकारी करते हुए नजर आते हैं। अफान वहीद जिनकी शादी 2016 में हुई, 2016 में इनकी शादी के 1 साल बाद ही इनकी तलाक भी हो गई। अफान वहीद ने अपनी तलाक के बाद कोई भी गलत बात नहीं की और ना ही अपनी वाइफ के बारे में इन्होंने कोई ऐसी बात की, बल्कि इन्होंने अपने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि कोई भी गलत नहीं होता, बल्कि कुछ ऐसे इंसान एक दूसरे के लिए नहीं बने होते। इसी तरह मैं और मेरी एक्स वाइफ दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने थे, इसी वजह से हम दोनों ने एक दूसरे से अलहदगी इख्तियार कर ली और हमें इस बात का बिल्कुल भी अफसोस नहीं है कि हम दोनों की तलाक हो चुकी है और ना ही इन्होंने कोई गलत बात की। अफान वहीद जो कि तलाक के काफ़ी अर्सा तक डिप्रेशन में भी रहे, इनका कहना है कि जब ये डिप्रेशन में गए तो उसके बाद इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना भी किया, लेकिन अब ये दोबारा से अपनी ज़िंदगी की तरफ वापस आ चुके हैं और दोबारा से अपना काम जारी कर चुके हैं और ड्रामा सीरियल्स के अंदर नज़र आते हैं। नंबर 7, असद सिद्दीकी। पाकिस्तानी अदाकार असद सिद्दीकी जो कि अदाकारा ज़ारा नूर अब्बास के हस्बैंड हैं। असद सिद्दीकी जिनकी ज़ारा नूर अब्बास से पहले भी शादी हो चुकी है। असद सिद्दीकी की पहली शादी पाकिस्तानी डिज़ाइनर महम सिद्दीकी के साथ हुई, लेकिन इन दोनों की ये शादी ज़्यादा अरसा ना चल सकी और शादी के 2 साल बाद ही इन दोनों की बहुत जल्द तलाक भी हो गई। शादी के 4 माह बाद इन्होंने अपने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि इनकी शख्सियत अपनी बीवी से काफ़ी ज़्यादा अलग थी, इसी वजह से इन दोनों की आपस में ज़्यादा ना बन सकी। इसी वजह से इन दोनों की बहुत जल्द तलाक भी हो गई। तलाक के बाद असद सिद्दीकी ने पाकिस्तानी अदाकारा ज़ारा नूर अब्बास के साथ शादी की। ज़ारा नूर अब्बास के साथ शादी करने के बाद अब असद सिद्दीकी काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आते हैं और अपनी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा खुश भी हैं। अब इन दोनों की एक बेटी भी है जिसके साथ ये दोनों हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। नंबर 8, ज़ैनब क़य्यूम। पाकिस्तानी अदाकारा और मॉडल ज़ैनब क़य्यूम जो कि आज बेशुमार ड्रामा सीरियल्स के अंदर काम करती हुई नज़र आती हैं। ज़ैनब क़य्यूम आज से नहीं बल्कि काफ़ी लंबे अरसे से पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं। इन्होंने बहुत अरसा पहले ही काम करना शुरू कर दिया था। स्टार्ट इन्होंने मॉडलिंग में किया और उसके बाद अब ये ड्रामा सीरियल्स में आईं। ज़ैनब क़य्यूम की शादी 2010 में हुई। शादी करने के बाद ये पहले दुबई और उसके बाद लंदन चली गईं, लेकिन शादी के कुछ अरसा बाद ही इन दोनों के दरमियान कुछ ऐसे इख्तलाफात हुए जिनकी बिना पर इन दोनों ने अलहदगी का फैसला कर लिया और शादी के कुछ माह बाद ही इन दोनों की तलाक भी हो गई। इन्होंने इंटरव्यू के दौरान बताया कि इन्हें इस बात का बिल्कुल भी अफसोस नहीं है कि इनकी तलाक हो चुकी है, क्योंकि इन्होंने इस शादी को निभाने के लिए पूरी कोशिश की, लेकिन इनके शोहर नहीं चाहते थे कि ये शादी ज़्यादा अरसा चल सके और सबसे पहले इनके शोहर की तरफ से ही ये शादी ख़त्म हुई। इसी वजह से सिर्फ और सिर्फ 10 माह बाद ही इन दोनों की आपस में तलाक हो गई और तलाक के बाद दोबारा से ज़ैनब क़य्यूम ने शोबिस इंडस्ट्री में काम करना शुरू कर दिया और आजकल ये बहुत सारे बड़े बड़े ड्रामा सीरियल्स के अंदर भी काम करती हुई नज़र आती हैं, जहां पर इनके अदाकारी को पसंद किया जाता है। नंबर 9, सजल अली। पाकिस्तानी अदाकारा सजल अली जो कि आज किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं। सजल अली जो कि आजकल बहुत सारे ड्रामा सीरियल्स के अंदर काम करती हैं। इन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि भारत में भी काम किया।
सजल अली ने 2019 में पाकिस्तानी अदाकार आद रज़ा मीर के साथ शादी की। इन दोनों की ये लव मैरिज थी। इन दोनों ने जब ड्रामा सीरियल यकीन के सफ़र के अंदर काम किया तो उस ड्रामा सीरियल की वजह से इन दोनों की आपस में काफ़ी अच्छी दोस्ती हुई, जिसके बाद इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और इन दोनों ने एक दूसरे से शादी करने का भी फैसला किया। लेकिन शादी के कुछ अर्सा बाद ही ये दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। कुछ अर्सा पहले जब सबूर अली की शादी हुई, जो कि सजल अली की बहन है, उनकी शादी के मौका पर आद रज़ा मीर की फैमिली में से किसी ने भी शिरकत नहीं की। जब इनकी फैमिली में से किसी ने शिरकत ना की तो इनके फैंस काफ़ी ज़्यादा हैरान हुए और ये बात काफ़ी ज़्यादा फैलने लगी कि इन दोनों की आपस में तलाक हो चुकी है। लेकिन इन दोनों ने अपनी तलाक की बिल्कुल भी तस्दीक ना की, जबकि इन दोनों की तरफ से ये बात सामने भी आई कि आद रज़ा मीर नहीं चाहते थे कि सजल अली ड्रामा सीरियल्स के अंदर काम करें। इसी वजह से इन दोनों के दरमियान इख्तलाफात हुए। इसी वजह से इतनी जल्दी इन दोनों की आपस में तलाक भी हो गई। कुछ दिन पहले सजल अली ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान भी इस बारे में बताया कि शादी करना बिल्कुल भी गलत नहीं है, बल्कि आपके पार्टनर को चाहिए कि आपको वो सपोर्ट करे। असल में सजल अली का इशारा आद रज़ा मीर की तरफ था, जिन्होंने इन्हें बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया और अब इन दोनों की अलहदगी हो चुकी है और दोबारा ये दोनों अब एक दूसरे के साथ नजर नहीं आते। नंबर 10, फिरोज़ खान। पाकिस्तानी डैशिंग अदाकार फिरोज़ खान, इनके बारे में तो आप लोग जानते होंगे। आजकल इनकी शादी की कुछ तस्वीर भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हैं। इनके बारे में ये खबर सामने आ रही है कि फिरोज़ खान ने दूसरी शादी कर ली है। 2018 में फिरोज़ खान ने अपनी कज़न अलीज़े फ़ातिमा के साथ शादी की। इन दोनों की शादी ये अरेंज मैरिज थी और इनकी शादी ज़्यादा अरसा ना चल सकी, बल्कि इनकी शादी के 2 साल बाद ही इनकी आपस में तलाक हो गई। जब अलीज़े फ़ातिमा ने इनके बारे में सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी बातें की, इन्होंने कहा कि इनके शोहर इन पर काफ़ी ज़्यादा तशद्दुद भी करते थे। इसके अलावा इनके ताल्लुकात दूसरी अदाकारों के साथ भी थे। इसी वजह से इनकी पहली वाइफ ने इनसे तलाक का मुतालबा किया और इन दोनों की आपस में तलाक भी हो गई। लेकिन अब फिरोज़ खान ने दूसरी शादी करने का फैसला किया और इन्होंने दुआ के साथ दूसरी शादी कर ली। इन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर यह खबर शेयर की कि इन्होंने दूसरी शादी कर ली है। इन तमाम अदाकारों के बारे में जानकर आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा और इन तमाम अदाकारों में से आपके पसंदीदा अदाकार कौन से हैं हमें ज़रूर बताइएगा। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगे तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली ऐसी किसी वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।